वेलकम बैक नाजरीन, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक एक्सचेंजेस इन पाकिस्तान और उनका क्या रोल है कैपिटल को मोबिलाइज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफडीआई। अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फजल जवाद ने, जो कि किंग फाद यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया से उनका तल्लक रहा है। वहाँ पे सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक में इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में भी इनकी खासी तहकीक है। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने हमारी बातचीत, डॉक्टर साहब वेलकम टू द प्रोग्राम। तो आप सुन रहे थे, व्हाट डू यू थिंक ऑफ कि पाकिस्तानी ये जो मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट्स हैं, आर दे कंपेरेबल टू व्हाट यू were working with in the Gulf or in other countries? दो चार चीजें हैं डॉक्टर साहब। एक तो ये है कि साइज वाइज these markets, पाकिस्तानी market is much smaller than the Gulf markets. Saudi Arabia, for example, would have a market capitalization of about $370 billion compared to our market capitalization of about 40 billion dollars. So although all of them except for Saudi Arabia, but Saudi GDP का क्या रेशियो होगा वो? Saudi GDP is right now about $700 billion. So it's about 50%. A little more than 50%. Little percent. जी, little more. Pakistan में it's about 20%. 20% partly because of the valuations that they were talking about. कि जी valuation जो है वो it's not fully reflecting. So we all are part of the, for example, the GCC, the 5 countries of the GCC market are part of the frontier MSCI index. Acha. Except for Saudi Arabia, which was not admitted to the frontier market because of lack of access to foreign investors. Acha, foreigners can't invest there? Not directly. I see. Now for the last year or so. तो अब ये जो फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स है, और क्योंकि पाकिस्तान at one time was in the emerging markets, sure, and now we are back into the frontiers. So इसका what is the implication over there? I think it has major implication from global portfolio allocations. जो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो तो इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन योर वेटेज इन द इंडेक्स, राइट। सो इफ पाकिस्तान, अर्जेंटीना roughly about the same time were expelled from the emerging markets to downgraded basically to the so emerging market में ज्यादा पोर्टफोलियो मैनेजर्स आएंगे, फ्रंटियर मार्केट में ओनली द risk takers, as emerging frontier market is called the emerging market. अच्छा। तो weightage wise देखिए, now MSCI, which is the leading index, which is the Morgan Stanley capital index. Pakistan, if GCC is included, then Pakistan's weight in that index is, I believe, less than 4%. If you exclude Kuwait, Qatar, UAE, Dubai and Oman, then our weightage in the frontier market would be about close to 8%. Achha. Which is decent. But GCC included, no. So one, we are small. Then we are pretty good in generating bad publicity. अच्छा, ये जो फ्रंटियर मार्केट्स का है, इज इट यू आर पार्ट ऑफ द फ्रंटियर मार्केट बिकॉज योर मार्केट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली, देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, इज इट द टेक्नोलॉजी, इज इट द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, क्या चीज होती है विच मेक्स पुशेस यू इनटू दैट इंडेक्स? Actually there is a ambiguity as far as the definition is concerned कि आप frontier हैं, आप emerging हैं. Right now Zimbabwe is part of the frontier market. Greece at one time was a developed market. Yes. So वो distinction इतना है कि liquidity is a factor that they look at. Transparency is a factor. Certainly disclosure, functioning. ये corporate governance rules जब आए तो will that make a difference? It helps. Liquid size is a factor. If the size is not there, then global investments would not be coming. So what should Pakistan be doing in terms of trying to improve its standing? अब हम फ्रंटियर से emerging market में कैसे आ सकते हैं?
उसके लिए बहुत सारे यानी चीजें करने वाली हैं. आई थिंक लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन ऑपरेशनली एज द पार्टिसिपेंट्स पॉइंटेड आउट. We see significant improvement as far as the system is concerned. Handling of trades, disclosure has improved, so that is better. Liquidity is still a factor. Our liquidity is very weak. The volume is not there. Volume is not there, which is a factor in where. At one time, तो हमारी Asim, our volume was the best in Asia. हमारा जो market cap का gearing ratio होता है, market cap to the turnover was among the highest in the world. We were actually doing turnover much higher. उसकी वजह से liquidity was so high. And that's why you were popular also. You were People popular. could come in, go out anytime. और वो जो प्राइस डिस्कवरी है ना जी, वो इतनी कम हो जाती है कि एक पैसे पे आ जाती है. So people feel more confident कि यार ये एक पैसे में निकल जाओ और लेना भी चाहो जितना मर्जी शेयर ले लो. So that is the factor. Liquidity. So what do you foresee? I mean, जितनी भी हमने बातें की, demutualization, technology, outreach, future of the markets is in good hands. Is the community, are we being taking it in the right direction? लोगों का confidence हम कैसे बढ़ाएंगे? ये चीजें हो रही हैं. I mean, देखिए जी, हमें जाके टैप करना है रिसोर्सेज. पैसा बड़ा अवेलेबल है मार्केट में. इट इज जस्ट दैट यू गॉट टू गो एंड टेल देम कि ये वाली जगह में ज्यादा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है, पैसे यहाँ पे ज्यादा बन सकते हैं. तो एक तो आपको जाके जो एजुकेशन का प्रोग्राम है, who is going to say कि अपॉर्चुनिटीज हैं? नजर आती है ना जी, सम शेयर्स आपको नजर आते हैं कि अंडर वैल्यूड जा रहे हैं. इन्वेस्टमेंट करो इसमें. इसका पी जो अगर मार्केट का पी 9 है तो आपका इस कंपनी का पी 3 है. तो यार यू गॉट सो मच अपॉर्चुनिटी हेयर कि यार इस कंपनी में आप डालोगे पैसा तो 3 साल में आपका रिटर्न आ जाएगा. ये जो 2-2.5 लाख इस वक्त इन्वेस्टर्स हैं उनको ये नजर नहीं आ रहा. तो उनको हमने एक्सप्लॉइट करके बड़ा यूज कर लिया. कभी ओजीडीसी 150 पे उनको ले दिया, वहां से कैप लगते लगते 100 रुपए 80 रुपए हो गया. तो देव बीन बर्नट आउट. ना आपका एक यू हैव टू हैव फ्रेश ब्लड जो आके इन्वेस्टमेंट करता रहे और आके जो निकलना चाहे उसको निकाल दे. सो पीपल्स कैपिटलिज्म जो है कि हर खानदान ने कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है. इज दैट कैन इट बी अ रियलिटी और नॉट? सम इंडिया में मोस्ट ऑफ द हाउसवाइफ्स दे डोंट मेक दिस कमेटी पार्टीज. ये वाली कमेटी में नहीं डालते. वो अपना जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली आईपीओज. और वो उनके फॉर्म्स बाहर पड़े. हमारे भी एक जमाने में बड़ा होता था नए आईपीओ वाले. ये जो खवातीन है, कैन दे हैव स्टॉक मार्केट पार्टीज? They should have stock market parties. That's a new trend. I think शुरू करना चाहिए उस पे. क्योंकि कमेटियों में तो बेशुमार पैसा है और उसमें कमेटी पार्टीज में वो खाना शाना भी अच्छा. और उसमें ब्यूटी ये जी, आप 5,000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर लो, आप 5 लाख से भी कर लो. तो ये खवातीन शुड दे गो इनटू म्यूचुअल फंड्स और शुड दे try their hands at individual stocks? I think they should go for individual stock. Mutual fund industry has not performed. हमारे unfortunately हमारे मुल्क में mutual fund industry has not done that good. Are you saying that they are so bad that people should not get that diversification जो mutual fund देता है or go to individuals? Sir, I would say कि you should choose your broker very थैरली. उसको देखें, उसके पास जाएं, एडवाइस लें और कंपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद उस कंपनी को पढ़ें, देखें क्या हो सकता है और एक तो उस कंपनी को रिसर्च करें. म्यूचुअल फंड मेरे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आप देख लेते हैं डिस्काउंट पे म्यूचुअल फंड्स फिर रहे हैं. व्हाई आरंट पीपल इन्वेस्टिंग? बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज नॉट गिवन दैट काइंड ऑफ रिटर्न. यस सर, मैं थोड़ा सा आई थिंक अगर हमने बढ़ानी है रीच तो म्यूचुअल फंड वुड बी द इंस्ट्रूमेंट. बिकॉज इतनी हाउसवाइफ जैसे आपने नहीं तो बट म्यूचुअल फंड ने रिटर्न क्यों नहीं दिया? देखें, इसमें मैं पर्सनली फील करता हूं, अगर आप आज हमारी अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, 600 कंपनीज लिस्टेड हैं. ठीक, 600 कंपनीज में से यू वुड बी अमेज्ड कि 300 कंपनियां ऐसी हैं जो अपनी बुक वैल्यू से नीचे आज ट्रेड कर रही हैं, जो कि ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा? जी, असली फ्लोट है, वैल्यू यही है, नीचे है. लेकिन इशू ये है कि वो जो 300 कंपनियां हैं वो दे आर प्रैक्टिकली डेड कंपनीज. 60-70% स्पॉन्सर्स के पास है, 20-15% एनआईटी के पास है. तो वो तो आप समझे 300-350 कंपनी, 400 कंपनियां तो ट्रेडेबल इन्वेस्टेबिलिटी उनमें है ही नहीं. तो उनको कैसे बनाएंगे आप ट्रेडेबल? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ 2 तरीके हो सकते हैं. या तो आप
जैसे इंडिया के अंदर बड़ी एनेबलिंग प्रोविजन है कि जी जो इस टाइप की कंपनीज हैं जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो इज फार मोर देन व्हाट दे हैव द वैल्यू कोटेड ऑन द एक्सचेंज, दे इन इंडिया दे आस्क दी स्पॉन्सर्स कि जी इसकी इतनी डिस्काउंट है, तो दे आस्क कि जी आप ये बाय कर ले माइनॉरिटी से। तो वो एक तो वो मतलब टेक इट प्राइवेट, एक ये ऑप्शन है, या इसके अदर वे राउंड है कि जी उसकी फिर एनआईटी अवेलेबिलिटी जो स्टॉक की है वो दे सेल इन द मार्केट। या डॉक्टर साहब वी हैव टू टेक अ ब्रेक, तो यहां से ही वील स्टार्ट के हाउ डू यू इंक्रीज द फ्लोट इन द मार्केट, पर्टिकुलरली ये 300 कंपनीज की जो आप बात कर रहे हैं, इज देयर अ प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग इट और नॉट? We'll take a short break.